Importance of coordination. Coordination is a vital requirement of today's complex organization. Its existence signifies coherence, unity of actions, and integrated effort. That means it is vitally important. That means it is very important that the coordination should be there in an organization, because today's organization is a complex in nature. That means everywhere there is a every organization want to build the rapport, create the goodwill. Okay, there is a huge competition in the market. There is a national competition. There is an international competition. In such a, it is very important in an organization. Unity should be there. It is a method by which the manager can avoid the potential source of conflict and can eliminate duplicate of the work. That means कि if there is proper coordination, then the conflict will be not there. Conflict का मतलब होता है झगड़ा, clashes. Okay. Suppose if two department is not meeting with each other, तो उनके बीच के जो problems है वो solve नहीं होंगे. So it is very important. Suppose if any department is doing the thing, कोई department suppose अगर कोई survey कर रहा है, and अगर दूसरे department को उसके बारे में information ही नहीं है, तो वो department भी same वही information निकालेगा. So then there will be a duplication of the work. So it is very important that each and every department should know what they are actually doing. Okay, let's see the first point, division of labor. When the work is divided into the specialized functions, all the department need rights for coordination. See, it's a 100-year-old principles of management that the person should be specialized. Okay, that for example, suppose if I am MBA with finance, I should be put into the finance department because I have gained all the knowledge about the finance. So if I will be put in the marketing department, if I will be put in the sales department, or if I will be put in the HR department, and I cannot give my best. So it is very important that you have to see the specialization of the person, and according to that, you have to put the person. So division of labor is very important. Okay, coordination ensures synchronization between the activities of the different units and eliminating overlapping or the duplication of the work. Okay, so each department has been given the work, and each department should be know what works they are doing. So there should be avoiding of the overlapping of the work. That means same work cannot be done by the same organization, and there should not be duplication of the work. Because if the duplication of the work will be there, then there is a wastage of the resources of the organization. Second, interdependence of the unit. The need of the coordination in an organization also arises due to the interdependence of the various unit and sub-unit people working with it. That means, see, a person cannot say that he is not depending on the other unit. For example, marketing department collect all the information about the marketing, and that marketing department give all the information to the sales department, and the sales department or the production department. Production department before producing anything, okay, need finance from the finance department. So all the people working in the organization is interdependent on the other unit. So it is very important. It is very important because if the person is not contracting with another, अगर एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, and there is a wastage of the resources. Next, large number of personnel, that is large number of employees. The increasing number of the persons involved in the large organization complication the problem of the coordination. See, if there is a multinational company है, बड़ी बड़ी company है, जिसमें there is 100 employee or 200 employee or 300 employee, so it is very important in such a way कि वहाँ पे लोगों का एक दूसरे के साथ coordination होना चाहिए, because each individual is unique, acting to serve his own needs as well as the organization. Because हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, organization के बारे में अगर नहीं सोचेगा तो organization successful नहीं होगा. Key to other function. Coordination is also the key to the other function like planning, organizing, controlling. Okay, various function of management you have seen in 12th standard also, and you have seen in the previous chapter also, that organization with planning is very important. Organizing is very important. So coordination is a link between all these functions. Then there will be smooth working because of the coordinated activities in the different department or the unit. The work of the organization run smoothly and effectively. That means अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है और सारे डिपार्टमेंट को पता है कि क्या हो रहा है, तो वर्क be smoothly done. High employee morale. I explained you about morale also. That means कि inside it is related
to the satisfaction. Okay, that means it should be come from inside. Yeah, I have to do something. So coordination develop the orderly arrangement returns enhance the morale of the employee. Employee का morale increase होता है. उसको ऐसा लगता है कि I should be loyal to the organization, and this lead to the satisfaction of the organization. Then as synergy, coordination provides synergy. It provides a result which will be more than the sum of the individual effort. It prevents duplication of the efforts and minimize the wastage of the time and energy. That means कि अगर सब मिलके साथ में काम करेंगे, okay? अगर काम जो है वो 5 hours का है, and if the 10 people will work, तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा 5 hours में. लेकिन वही काम अगर कुछ लोग करेंगे, 2 लोग करेंगे, तो 5 hours का काम 10 hours लगेगा. So it is very important. Is sum total of all the people should work together. And next, help to achieve the goals. Coordination facilitate the accomplishment of the goals by integrating the objective and the activities of the organization. And last but not least, the organization goal. Goal of the organization. Every organization has a goal. तो कैसे achieve होगा with the help of proper coordination. Okay. So these are all the things. Let's move. Now let's see the principles of the coordination. Okay, what are the different principles of the coordination? First, principles of the early beginning. This principle implies that the process of the coordination should begin at the early stage of the managerial process. It should begin at the early stage of the planning. That means कि at the time of the planning, see, first function of the management is planning. So coordination should start early at the time of doing the planning. We should properly coordinate. At that time, we have to think okay, who will be the coordination. The coordination is followed at the early stage of planning. Then only right plans would be framed. And but it also helps for effective organization, direction, and the controlling. That means, see, planning is the first function of the management. And at the time of the planning, अगर हमने properly coordinate किया, तो जो भी चीजें हैं वो proper जाएगी. And the next functions of the management है, like organization, direction, control, सब में easy हो जाएगा. So the first function of management हम लोग कर रहे हैं planning. At that time, we have to think about the coordination also. Second point, principle of the direct contact. Management need to have a direct personal contact with their subordinate. This helps in developing not only the good relation between the superior and the subordinate, but also the superior to the coordinate. That means that there should be a personal contact. See, for example, from last many days, like almost 1 year, we are meeting online. Last month, some of you have came offline also, so we've met. But many of you, we have not meet directly. So when we meet directly, that is different. See, even you know the difference between the offline and the online. Okay, that means now if I cannot see you कि आप लोग इस वक्त सो रहे हो, बैठे हो, आपके हाथ में बुक है या नहीं है. That means कि personal जो contact होता है, that is very important. Same way in organization also, जो superior है, जो manager है, जो higher level पे है, he try to maintain the good relation with the subordinator. इससे क्या होगा, subordinator जो है effectively और efficiently काम करेगा. Then there is a principle of continuity. Coordination is a continuous process, it's not a one time activity. That means ऐसा नहीं है कि एक बार किया और छोड़ दिया. Coordination is required continuous. As long as the organization exists, there would be activities. That means कि जब organization चल रहा है, for example, see, आप लोग जब 4 years के थे या 5 years के थे, तब से आपने अपनी study start करी, education start करी. Still you are learning. वो continuous process है. Now you are in first year, then you will go to second year, then you will go to third year. फिर आपको अगर मास्टर्स डिग्री करनी है तो यू विल डू द मास्टर्स डिग्री. दैट मींस कि इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, दिस इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी. एंड कंटिन्यूअस जो है आप लोगों को काम करना है. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन करना है. मैनेजमेंट ने एक बार कोऑर्डिनेशन किया एंड देन व्हेन बोर्ड बैठ गया, ऐसा नहीं है. यू हैव टू डू कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन. देन द प्रिंसिपल ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशन. The action or the decision of the various person or the department in the organization are interrelated. That means कि if जो भी person है, जो भी behave करता है organization में, उसका action और reaction जो है वो जो interrelated है. वहाँ पे example दिया है. The decision of the marketing people can affect the working of the production department because marketing department collect all the information. Marketing department market में जाके सारी information collect करता है.
ओके और मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है किसी देयर इज a need for this product को कि मार्केट में फॉर एग्जांपल सी ड्यूरिंग दिस पीरियड there is a huge demand for the sanitizer, huge demand for the mask. Okay, so marketing department collect the information that this sanitizer is very popular or this mask is very popular. This is all marketing information goes to the production department, and then on the basis of this production department produce the thing. That means all the department that are working in an organization are interrelated. एक ही working दूसरे अगर प्रोडक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है गलत चीजें प्रोड्यूस करेगा, मार्केट में फिर वो सेल नहीं होगी, देन प्रॉफिट नहीं होगा. सो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड. ओके, देन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आपको कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, दैट मींस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन टू बी इफेक्टिव there should be effective communication throughout the information. There should be good communication between all the levels. See क्या होता है कि when अगर आपके दिल में कुछ होता है, ओके, अगर आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जस्ट नाउ आई गॉट अ मैसेज दैट मैम गूगल क्लासरूम का लिंक भेजो, दैट मींस कि जो भी आपके मन में था आपने बोल दिया. ओके, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे एंड आई एम टेलिंग यू विजिट टू गूगल क्लासरूम और आपको गूगल क्लासरूम का लिंक ही नहीं मालूम है तो आप कैसे जाओगे? दैट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड स्पीक. तो क्या होगा, वो चीजें क्लियर हो जाएगी. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी important. Then there will be a principle of the mutual respect. Okay, mutual respect, that means kisi is a universal rule of give respect and take respect. Respect is very important. Organization may see there are different religion, different type of people are working. Okay, so it is very much important कि आप दूसरों को respect दो, दूसरों की feelings, दूसरों की emotions को understood करो. Okay, then there is a principle of the scalar chain. Again, this is the principle of the heavy fuels, that the principle of scalar chain क्या बोलता है कि there should be at a one time coordination. एक superior जो है वो एक ही को coordinate करेगा. See वहाँ पे क्या है, the principle of scalar chain or the line must followed at the time of coordination. At each level superior coordinate the activities of the subordinate. पता ना वो gang plan किया था A से B, B से C. That means there should be a proper coordination. Then there will be a principle of the clarity of the objective. Again, everything must be clear. Okay, for example, if I am telling you, see this, just now I told you कि whenever there is a PDF, तो मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है PDF. That means कि आपको सिर्फ PDF दिखेगा, जैसे अभी स्क्रीन दिख रही है वैसे आपको PDF दिखेगा. एंड जहाँ पे PDF नहीं लिखा है वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी. That means it should be clear. जब ऑर्गेनाइजेशन में भी, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, तो should be clear. क्लियर की जब तक क्लियरिटी नहीं होगी, आई शुड नो कि व्हाट वर्क आई हैव टू डू. Unless and until I should know, I cannot be able to do. So it is very important on the part of the superior that वो subordinate को सारी चीजें clearly बताए. Okay, and उसको बार-बार पूछे कि जैसे for example, after explaining the point I told you, go to the point, and if any problem is there, please ask me. That means कि आपके points clear होना चाहिए, कि आपको कोई doubts नहीं होना चाहिए. Same way in the organization, everything should be clear. जब तक चीजें clear नहीं होगी, जो भी है subordinate properly काम नहीं करेगा. So clarity of objective again is the principle of okay. Coordination refers to the interlinking of the action. There is need for the coordination. The top level coordinate to the middle level coordinate lower level, and lower level coordinate the activities of the subordinate. That means coordination जो है in an organization आपको पता है 3 levels है, वो 3 levels का एक दूसरे के साथ coordination बराबर से होना चाहिए. जो top level management है वो middle level को करते हैं, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, और लोअर लेवल अपने सबऑर्डिनेटर को. कोऑर्डिनेशन इज इन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्मेल. ओके, सपोज सी इफ समथिंग इज कुकिंग तो उसकी स्मेल आती है, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्मेल वी कम टू नो कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड. ओके, आप परफ्यूम परचेज करते हो तो भी आप यूज स्मेल कि हाँ उसकी स्मेल अच्छी है. सेम भी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर चीजें प्रॉपरली हो तो चीजें अच्छी होती है. इसी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, controlling, decision making. Okay, all these things we have studied. Planning हमने किया है. सबसे पहले organization has to do the planning, then he has to arrange the thing, organizing all the resources, then he has to arrange the staff, then he has to communicate all the activity, then he has to motivate employee कि क्या कौन सा काम करना है, कैसे करना है. Then organization has to lead, the superior has to lead the subordinator. Then everything should be controlled. Controlling में हम देखते हैं कि हमने जो planning की थी वो properly achieve हुई है या नहीं. And last is the decision making.
Okay, now let's see one by one. Planning and coordination. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do. Okay, this already we have done कि सबसे पहले प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं. देन ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करना है. सेकंड स्टाफिंग. एक बार हमारी प्लानिंग हो गई, एक बार हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अरेंज करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं. ओके, again this is same thing, communication and coordinating. Communication, again I told you it's very important. Communication is a transfer of message from the one person to the another. That means if I want to communicate anything, or just now मैंने अभी आप लोगों के साथ communicate किया कि see this page is blur, so this is very important. Otherwise आप लोगों को ऐसा लगता है कि नाम भी तो पेज दिख रहा नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे. So communication is very important. Then there is a leading and coordination. It is very important कि जो leader है वो lead करे अपने coordinator को. बिकॉज जो सबऑर्डिनेटर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर टू उनको लीड करे. देन मोटिवेटिंग. लास्ट लेक्चर वी हैव सीन मोटिवेशन. प्रोवाइड देम मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ऑन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और उनको मोटिवेट करो. देन लास्ट इज कंट्रोलिंग. ओके, कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हमने जो भी डिसाइड किया था, ओके वो हमने किया है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन को लगता था कि इस बार हमारा सेल जो है वो 10% इंक्रीज होगा, बट हमारा सेल जो है वो 5% इंक्रीज हुआ. देन इन द कंट्रोलिंग वी हैव टू फाइंड द डिविएशन कि हमने 10 सोचा था 5 क्यों आ, व्हाई देयर इज लेस, -5 में हमारा आंसर क्यों आ रहा है. ओके, एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन एंड द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में देन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, देन वी हैव टू टेक द डिसीजन कि हमने जो चीजें की थी वो सही थी कि नहीं, हमने स्टाफ को सही सिलेक्ट किया था कि नहीं, हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर थे या नहीं. ओके, एंड डिसीजन मेकिंग में अगर लगता है कि कोई चीज चेंज करनी है, देन फिर वो चीज को चेंज कर देती. ओके, सो ऑल दिस आर द कोऑर्डिनेशन पार्ट, एंड विद दिस कोऑर्डिनेशन इज कंप्लीटेड. Last step is controlling. As I told you, in controlling we actually performance जो है हमारा, जो भी actual performance है, हम उसको अपने प्लान से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से मैंने सोचा था मेरा 90% आएगा, बट आई गॉट ओनली 80% और आई गॉट ओनली 70%. सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, क्यों इतना डिफरेंस है? दैट मींस इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. एंड सपोज अगर मेरा एक्चुअल, सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अकाउंट्स में मार्क्स कम मिल रहे हैं, या मुझे बीसी में मार्क्स कम मिल रहे हैं, या मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मार्क्स कम हुए, एंड बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट मेरा परसेंटेज डाउन हो गया, तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है. ऑर्गेनाइजेशन भी सोचता है कि यहाँ पे लास्ट वाला डेफिनेशन देखो, मैनेजमेंट कंट्रोल इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द मैनेजर अश्योर्स that the resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization effective. That means कि हमने जो भी सोचा था, जैसा भी हमने सोचा था, हमको वैसा रिजल्ट मिलने के लिए हमको इफेक्टिवली एफिशिएंटली हमको काम करना है. Okay, so this is the controlling. Let's see the characteristics of controlling. First, control involves measurement. Controlling में भी performs हम लोग measure करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको example दिया, a company wants to increase the sale by 10%, but the sale has not increased by 10%. The sale has increased by only 5%. So company को ये difference क्यों है? कंपनी को measure करना पड़ेगा. Control is a continuous process. Again, controlling जो है one time process नहीं है. Controlling you have to continuous आपको चीजों पे control करना पड़ेगा. Control influence employee. A good control system acts for forcing whereby employee tend to perform effectively. हमको एम्प्लॉय को जाके प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे आर डूइंग थिंग राइट और नॉट. ओके, अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो उनको परफॉर्मेंस अप्रीजियल देना है, उनकी सैलरी इंक्रीज करना है. कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में, इफ यू गो टू इंडिया, इफ यू गो टू अब्रॉड, एनीवेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल प्रोसेस हो. फैसिलिटेट डायरेक्शन. कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फैसिलिटेट डायरेक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल हम लोग डायरेक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेल इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्यों हमारा सेल इंक्रीज नहीं हुआ, कहाँ पे हम से गलती हो गई, एंड देन फिर उसके हिसाब से हमको अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करना पड़ेगा. देन इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, वेदर इट इज अ फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सबको हमको अच्छी तरह से यूज करना है. दैट शुड बी इफेक्टिव use, optimum utilization of all the resources. Help manager to recognize the change. और अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर
कोई चीज गलत है तो फिर मैनेजर क्या करेगा कि उस चीज को चेंज करेगा। कौन सी चीज चेंज करना है वो भी बेस है कंट्रोलिंग का। लास्ट गोल ओरिएंटेड, कंट्रोल इज डैश ओरिएंटेड, कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड। दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग में हम गोल करते हैं, हमको गोल अचीव करना है। और वो गोल कैसे करेंगे, जब हमने जैसा प्लान किया था वैसे अगर हमको नहीं मिल रहा है तो मतलब हमने हमने कुछ गलती की है, तो देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। अगर हमने प्लानिंग की थी कि सेल विल इंक्रीज बाय 10% और सेल एक्चुअली 10% से इंक्रीज हो गई, दैट मींस व्हाटएवर वी हैव प्लान हमने उसको अचीव किया। ओके, सो ऑल दिस आर the characteristics of the managerial control. Okay, now let's see the importance. Guide to the operation. Okay, that means कि it is a guide, एक guidance देता है controlling कि किस तरह से चीजों को करना है। Activities are undertaken in the right direction. It acts as a traffic signal. Okay, traffic signal जैसे red होता है, green होता है। जैसे red है तो you have to stop, green है तो you have to move. जैसे आपको guide करता है, जैसे guide होती है, book होती है। ओके, सेम वे कंट्रोलिंग भी जो है आपको गाइड करता है। फैसिलिटेट परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन, दैट मींस इफ द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग वेल, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है। ओके, उसको ज्यादा सैलरी देनी है, उसको हॉलीडेज देनी है ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे। इम्प्रूव द मोरल, अगर आप एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे। ओके, रिव्यू करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल से स्कूल में, कॉलेजेस में कैसा होता है, स्कूल में देखो कंटिन्यू इवैल्यूएशन होता है, सबमिटिव इवैल्यूएशन। ओके, वैसे एक कंटिन्यूअस आपको देखना है कि अब एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होगा कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस जो है, सी अगर एक कंपनी है वो कंटिन्यूअस 3-3 महीने में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखती है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना बेस्ट देगा। एक कंपनी है जिसने 2 साल से अपना एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखा ही नहीं है तो वो फिर जो एम्प्लॉय है उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। Facilitate coordination. Just now we have seen that coordination is very important. Controlling facilitate coordination. Okay. अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंट्रोल रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोऑर्डिनेशन जब तक सब डिपार्टमेंट में रहेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वी हैव टू सी कि कौन से डिपार्टमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हम उसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे। मिनिमाइज ऑफ द वेस्टेज, जो भी वेस्टेज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है, या मशीन्स का वेस्टेज हो रहा है, या ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट पर्सन को राइट जगह पे डालेंगे ताकि उसका वेस्टेज ना हो। फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, control system fixes the responsibility of the superior. That means control system जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है किसके ऊपर, सुपीरियर्स के ऊपर, कि वो प्लान करे और ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग वो चीजों को करे। सो इससे क्या होता है कि जो भी चीजें होती है, काम की चीजें होती है, और अननेसेसरी चीजें जो है अवॉइड हो जाती है। ओके, हायर एफिशिएंसी, कंट्रोलिंग ब्रिंग द हायर एफिशिएंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर मोटिवेशन होगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी, एवरीथिंग प्रॉपर होगा। ओके, वेस्टेज नहीं होगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन की सेल इंक्रीज होगी। ओके, आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट। Yes, ma'am. ओके, और लेट्स सी द Yes, स्टेप ma'am. ऑफ कंट्रोलिंग। यू कैन सी ओवर, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ओके, द फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग द टारगेट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द टारगेट। देन देखो यहाँ से एरो जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन, डिविएशन, लिस्टिंग द मेजर, इम्प्लीमेंटिंग द मेजर, एंड लास्ट इज फॉलो अप। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जांपल द सेल शुड बी इंक्रीज बाय 10%। उसके बाद आपको एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करनी है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेल, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देन यू हैव एट द एंड ऑफ द ईयर आप मेजर करोगे, तो आपने फाइंड आउट किया कि योर सेल है नॉट इंक्रीज टू 10%, से 5% से इंक्रीज हुई। ओके, यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, डिविएशन कितने का है, 5 का। देन यू विल लिस्ट आउट द मेजर्स कि आप क्या मेजर्स लोगे, आप क्या स्टेप लोगे जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो इंक्रीज होगा। एंड देन जो भी आपने न्यू मेजर्स सोचा है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, एंड देन आप फॉलो अप करोगे। ओके, फर्स्ट इज यू हैव टू सेट द टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखो, the marketing department may set the target that 10,000 unit of the product during the March 2004. That means कि 2004 में हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10,000 यूनिट का होना चाहिए। ये जो है उनका टारगेट है।
इम्प्लीमेंटेशन, अब ये जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, वो लोग एक्टिविटीज करेंगे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज, whether it is financial resources, physical resources, property, जितनी भी चीजें हैं. Then the measurement of the performance, okay, performance of the individual department is measured periodically. जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, सारे की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. एंड देन देयर इज अ कंपेयरिंग विद एक्चुअल प्लान्स, ओके. देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग कंपेयर करेंगे. सी यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी 9,000 यूनिट, हमने कितना प्लान किया था 10,000, बट कितना फायदा कितना हुआ 9,000. तो क्या है डिफरेंस ऑफ 1,000. दैट मीन्स हमारी प्लानिंग थी कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो 10,000 का होगा, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमने कंपेयर किया तो हमारा प्रोडक्शन सिर्फ जितना है 9,000 का है. सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,000. ये जो शॉर्टफॉल है 1,000 का, फिर हम लोग इसके लिए लिस्ट करेंगे कि ये जो डिफरेंस आया, हमारा जो रिजल्ट है क्यों अचीव नहीं हुआ. ओके, तो हमको मिला पुअर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, हमारी एडवर्टाइजिंग अच्छी नहीं थी, पुअर डीलर रिलेशनशिप, जो डीलर था. ये सारे रीजंस नहीं हो सकते हैं, इसमें से कोई एक रीजन या दो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमने जो हमारा प्लान किया था 10,000 यूनिट का, वो हमने अचीव नहीं किया. सो इट मे बी पुअर एडवर्टाइजिंग, इट मे बी पुअर डीलर, पुअर प्रॉब्लम विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या आपके प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी नहीं है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ओके, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और मुंबई से बाहर ये प्रोडक्ट जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी नहीं है, या योर कॉम्पिटिटर इज यूजिंग द बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. ये सारी चीजें हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे कि ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस हमने जो हमारा टारगेट था 10,000 का वो हमने अचीव नहीं किया. देन हम लोग इसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि ओके अब हमको लॉस हो गया है 1,000 का, तो हम क्या करेक्टिव मेजर्स लेंगे. सो करेक्टिव मेजर्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, पुअर एडवर्टाइजिंग कैंपेन. अगर हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन अच्छा नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करेंगे. दैट मीन्स अगर हम लोग प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पहले अगर दिन में 2 बार आता था तो हम लोग 4 बार देंगे. हम लोग अगर हमारे एडवर्टाइजिंग में कोई ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं था तो नाउ विल अपॉइंट द ब्रांड एम्बेसडर्स, किसी क्रिकेटर्स को या किसी फिल्म स्टार्स को विल अपॉइंट, ओके. या फिर हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम था तो हमारी क्वालिटी को भी विल इंक्रीज, ओके. या फिर हमारे डीलर्स के साथ हमारा प्रॉब्लम था तो हमारे डीलर रिलेशन, दैट मीन्स जितने भी लिस्ट डाउन हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उसके ऊपर हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेंगे. एंड आफ्टर ये करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद एक बार फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमने जो प्लान किया था वो अचीव किया है या नहीं. तो नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, रिव्यू और फॉलो अप में क्या होगा कि आफ्टर करेक्टिव मेजर्स में भी आपने जितना भी प्लान किया था उतना आपको अचीव हो जाएगा. एंड इसके बाद भी अगर आपको प्लान एक्टिविटीज आपकी अचीव नहीं हो रही है, then again you have to go back to the first step कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई. ओके, आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट. Yes, ma'am. Okay, this all you have studied in the low. Let's see the technique of controlling. First technique of controlling is a budgetary control. Budgets are the statement of the anticipated result. They can be expressed either in the monetary term, in the case of the revenue and expenses, or in the monetary term. That means किसी budget. That means कि जब आप जाते हो कोई चीज परचेज करने के लिए तब आप बोलते हो, सपोज अगर सेल्समैन आपको ओवर बजट का कोई चीज दिखाता है तो आप उसको बोलते हो सी मेरा बजट 5,000 का या मेरा बजट 10,000 का है तो मुझे उतने में ही सामान दिखाओ. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना बजट होता है, ओके. फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए इफ यू आर टेकिंग द क्रिकेटर्स, इफ यू आर टेकिंग द सेलिब्रिटीज, तो आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाता है. अगर न्यूली कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग द सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स फिल्म स्टार्स, वो जो है वो नॉर्मल मॉडल्स के साथ जाएगा. उसका बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना बजट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बजट वो चीजें कंट्रोल करता है. सो इससे क्या है, लेट्स सी द एडवांटेज. बजट हेल्प्स टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. अगर आपने प्रॉपर बजटिंग की तो आपके टोटल फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब अच्छी तरह से काम करेंगे. बजट आर अ मींस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता है कि आपका बजट कितना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है सारी चीजें प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करेंगे. बजट कैन इंक्लूड द बिहेवियर एंड द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉई. दैट मीन्स कि एम्प्लॉय को भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इतना बजट है, ऑर्गेनाइजेशन इतने बजट में ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, और अगर ओवर बजट हो गया देन हमारी सैलरी इफेक्ट होगी, ओके, या फिर हमारा इंक्रीमेंट इफेक्ट होगा. तो और जो एम्प्लॉय क्या करेगी, वेस्टेज नहीं करेगी.
Budgetary control the follow the principles of the principle of control by exception. The subordinate report not only the exceptional deviation to the superior, also the superior can concentrate on the significant deviation. That means बजट से हमको ये पता चलेगा कि हमारा जो डिविएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना था, हमने 9,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, वो 1,000 पर जो डिविएशन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे हमारे से प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हमारा बजट कम हो गया. बजट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टू द लोअर विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल. दैट मीन्स कि प्रॉपर बजट अगर हमारे पास है तो हम अपने लोअर लेवल को, अपने सबऑर्डिनेटर्स को भी अथॉरिटी दे सकते हैं कि हाँ सी इतने बजट में ही आपको काम करना है. A budget facilitate performance appraisal of the employee, the actual performance. That means कि employee की जो performance है वो measure की जाती है. That means each and every employee know कि हमको जो बजट दिया है हमको उतने में ही काम करना है, बिकॉज हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करेंगे, तो ओवर बजट वो लोग नहीं जाते. बजट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज है वो भी अच्छी तरह से यूज होते हैं. Budget helps to control the cost and expenses. The employee will try to make every possible effort to reduce the cost and expenses. With the help of the budget, employee क्या करेगा, अच्छी चीजें बनाएगा और कॉस्ट वेस्टेज नहीं करेगा. वेस्टेज नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा. कॉस्ट कंट्रोल होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. ओके, so all these are the budget control. Second is management audit. We'll continue in the next lecture. Okay, student. I hope it's clear.